till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy and Shri C.P. Radhakrishnan were found valid. As you are aware, in the vice presidential election, all members of parliament, including the nominated members, are eligible to cast their votes. There are 788 electors, 245 from Rajya Sabha and 543 from Lok Sabha. There are 6 vacancies in Rajya Sabha and 1 vacancy in Lok Sabha. Thus, there are 781 electors. The polling for the Vice Presidential Election 2025, which commenced at 10 a.m. today, the 9th of September 2025, in room number F101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 781 electors, 767 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and 1 postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled, as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as Vice President was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है उपराष्ट्रपति चुनाव में।
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। उपराष्ट्रपति चुनाव सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जो है वो घोषित हो गया। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ है। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी कि देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। 452 वोट मिले सीपी राधाकृष्णन को और इसी के साथ देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, यानी कि देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो ये बड़ी जीत हुई है और सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है उपराष्ट्रपति चुनाव में। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है। एनडीए की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की हार हुई है। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे, यानी कि इस चुनाव में एनडीए की जीत हुई है और इंडिया ब्लॉक इसकी हार हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जो है वो घोषित हो गया है। एनडीए की जीत हुई है, यानी कि सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। इंडिया ब्लॉक की उपराष्ट्रपति चुनाव में हार हुई है। उपराष्ट्रपति एनडीए के होंगे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो ये बड़ी जीत है एनडीए की। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए। 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले और इसी के साथ अब सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली थी और अब सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे देश के। तो सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत। उपराष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। एनडीए की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की इसमें हार हुई। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पद खाली था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और जिसमें सीपी राधाकृष्णन को जीत हासिल हुई है। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। 452 वोट से उनकी ये बड़ी जीत हुई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, बड़ी खबर बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और इसी के साथ देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो ये महा मुकाबला था एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, जिसमें एनडीए की जीत हुई है। इंडिया गठबंधन की हार हुई। देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। 452 वोट से उनको मिले और इस चुनाव में, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और इसी के साथ अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे।
तो बड़ी जीत, एनडीए की बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन की हार हुई है। तो ये वहाँ मुकाबला था एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में, जिसमें एनडीए की जीत हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 452 वोट मिले उन्हें और इसी के साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सीपी राधाकृष्णन, इसमें उनको जीत हासिल हुई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जीत हुई है सीपी राधाकृष्णन की, यानी कि एनडीए की जीत हुई और इंडिया गठबंधन की हार हुई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी कि अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। इंडिया गठबंधन की ये बड़ी जीत हुई है, वहीं इंडिया ब्लॉक की हार हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद चुनाव कराया गया और इस चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। ये महामुकाबला था और इस मुकाबले में एनडीए की जीत हुई। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, सुदर्शन रेड्डी की इसमें हार हुई है और सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है, वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, एनडीए की जीत हुई है, सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 452 वोट उन्हें मिले और जिसके बाद उनकी जीत हुई। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया, जिसमें एनडीए से सीपी राधाकृष्णन को उतारा गया, जिसमें इनकी जीत हुई है। 452 वोट उन्हें मिले और सीपी राधाकृष्णन की इस महामुकाबले में जीत हुई, जिसके बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। इंडिया ब्लॉक की तरफ से सुदर्शन रेड्डी मैदान में थे, लेकिन उनकी हार हुई है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, यानी कि देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे और सुदर्शन रेड्डी यानी कि इंडिया ब्लॉक के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उनकी इसमें हार हुई है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और देखिए किस तरीके से इस जीत को जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव के इस जीत का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। सुदर्शन रेड्डी की इसमें हार हुई है। इंडिया ब्लॉक से वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और एनडीए की जीत हुई है, यानी कि देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। हालांकि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि जीत एनडीए की होगी, सीपी राधाकृष्णन की होगी और 452 वोट उनको मिले और अब सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बड़ी जानकारी। तो देखिए इस जीत को किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो 452 उन्हें वोट मिले, जिसके बाद अब वो भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ था और शाम 5 बजे ये मतदान खत्म हुआ। शाम 6 बजे से ये मतगणना शुरू हुई और जिसमें सीपी राधाकृष्णन को भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुना गया।
तो सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। बड़ी जानकारी, 452 मत उन्हें मिले, उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यानी कि न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए, तो वहीं सीपी राधाकृष्णन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को 452 मत मिले, तो वहीं विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए। इसी के साथ देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने, 452 वोट उन्हें मिले, तो वहीं विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यानी कि सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 मत प्राप्त हुए। तो शाम 5 बजे ये मतदान समाप्त हुआ, जिसके बाद 6 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हुई और इसी के साथ एनडीए की जीत हुई है, यानी कि सुदर्शन रेड्डी की इसमें हार हुई, जो इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, और एनडीए की जीत हुई। सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, 452 वोट उन्हें मिले, तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यानी कि सुदर्शन जो रेड्डी है उन्हें मात्र 300 वोट मिले, तो बड़ी जीत एनडीए केस में। तो ये महामुकाबला सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच था। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, शाम के 5 बजे ये मतदान खत्म हुआ। शाम 6 बजे मतगणना शुरू की गई, जिसमें सीपी राधाकृष्णन यानी कि एनडीए के उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनके इसमें जीत हुई, उन्हें 452 वोट मिले, और जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट मिले, और इसी के साथ देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चुने गए, और ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी जीत है एनडीए की। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराया गया, जिसमें सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में ये महामुकाबला था। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ, 5 बजे खत्म हुआ, इसके बाद 6 बजे वोटों की गिनती शुरू की गई, और जिसमें एनडीए को जो उम्मीदवार हैं उन्हें 452 वोट मिले, यानी कि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। इसके बाद अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, और इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और इस जीत का जश्न है ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जीत के बाद किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य भी है, और देश को अगला उपराष्ट्रपति भी मिला। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। तस्वीरें भी स्क्रीन पर है, देखिए दिल्ली से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जीत के बाद ये जश्न किस तरीके से सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया जा रहा है, और अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। एनडीए की बड़ी जीत है। वहीं विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की हार है। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, तो वहीं सीपी राधाकृष्णन यानी कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 452 वोट मिले। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जीत के बाद किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जीत के बाद ये जश्न ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, और किस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं उनका किस तरीके से माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तो ये बड़ी जीत
में आप मानकर चलिए कि इस जीत को अच्छी खासी जीत कहा जा सकता है। उसकी वजह ये है कि जो विपक्ष की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था, कुछ घंटे पहले जयराम रमेश ने वोटिंग के बाद ट्वीट किया था कि उनके जो 315 जो है सांसद हैं उन सभी ने वोट किया है विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए। लेकिन देखिए आप, विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट मिले महज 300, यानी 15 जो वोट हैं उनकी कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है। 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए हैं। वहीं आप देखिए कि जिस तरह से एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जिस मतों से जीते हैं 452, यानी एनडीए गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा था कि 437 के आसपास मिलेंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वोटों से उनके उम्मीदवार की जीत हुई है। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो चुने गए हैं, इससे आप समझिए जिस तरह से जो परिणाम आए हैं उसके कई मायने होते हैं। उससे इमेज बनती है सरकार की कि आप देखिए जब इतने अच्छे खासी संख्या में वोट मिले, इसका मतलब ये है कि एनडीए की तरफ से जो चीज़ें मैनेज हुई वो बेहतर ढंग से मैनेज हुई और कहीं ना कहीं अपोजिशन की जो पार्टियां थी उनमें 15 वोट जो है वो क्रॉस वोट हो गए, जिसकी वजह से जो एनडीए उम्मीदवार को अच्छी खासी संख्या में वोट पड़े। जी, तो ये बड़ी जीत है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जिसके बाद उनकी बड़ी जीत। तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े और नृत्य, इसके साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति, बैकग्राउंड आप देखें, तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, तमिलनाडु से आते हैं और वहाँ बीजेपी लंबे समय से वहाँ पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती बने हुए हैं, जहाँ बीजेपी लगातार जो है रास्ता निकाल रही है कि कैसे अपना बेस बनाए। और सीपी राधाकृष्णन की चूंकि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, संघ की पृष्ठभूमि से रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद गवर्नर बने, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग होती है और मैसेज जाएगा और इसके सहारे बीजेपी तमिलनाडु में अपने आप को मजबूत करना चाहेगी। जाहिर तौर पर इसी सोच के साथ बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया था। हालांकि देखिए संवैधानिक पद है, जब कोई व्यक्ति इस पोस्ट के लिए चुन लिया जाता है तो पार्टी हित से ऊपर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज की गुणाभाग होती है वो कहीं ना कहीं यही होती है कि उनकी जो पार्टी है, जिस राज्य से उन्होंने कैंडिडेट चुना है उस राज्य में मजबूत हो। और इसके मायने यही है कि तमिलनाडु में बीजेपी की कोशिश होगी कि अब और ज्यादा मजबूती से वहां पर विधानसभा चुनाव लड़े। कम से कम अगर सरकार बनाने की स्थिति में फिलहाल ना हो अगले चुनाव में, तो कम से कम सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका में आए। जिस तरह से आप देखिए बीते चुनाव में पश्चिम बंगाल में हुआ, बीजेपी किस तरह से 2 सीट से लगातार बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के लिए कोशिश यही है। हालांकि देखिए विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो भी दक्षिण भारत से ही थे, एनडीए उम्मीदवार की काट के तौर पर उतारा गया था, लेकिन जो दावा था विपक्षी गठबंधन का, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका जो दावा था, कहीं ना कहीं उस दावे से कम वोट जरूर पड़े हैं विपक्षी गठबंधन को। जी वर्षा। तो एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए जीत के बाद किस तरीके का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की इसमें जीत हुई है और वहीं इंडिया ब्लॉक यानी कि कहीं झटका, और ये माना जा रहा है कि जो ये वोट इनवैलिड हुए हैं, अवैध घोषित हुए हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के चलते हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया था कि जो 315 हैं वो सभी वोट विपक्षी उम्मीदवार को मिलेंगे, वो नहीं मिले। महज 300 वोट पड़े कांग्रेस जो विपक्षी उम्मीदवार थे उनके लिए, जस्टिस रेड्डी के लिए। तो ये मान सकती हैं आप कि कहीं ना कहीं अपोजिशन जो दावे कर रहा था कि वो एकजुट है, सभी सांसद जो है वोट करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने में एनडीए कामयाब हुआ और जो एनडीए का अपना आकलन था उससे कहीं ज़्यादा जाके आप देखिए कि वोट मिले 452 और एनडीए की पहली कैलकुलेशन ये थी कि 436-37 के आसपास उनको वोट पड़ सकते हैं। तो आप कह सकती हैं कि एनडीए अपनी रणनीति में कामयाब रहा और आप देखिए इसके लिए पूरी तरह से व्यू रचना की गई थी। कल प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को संबोधित किया था और बाकायदा प्रधानमंत्री ने भी उनको एक एक बारीकी बताई थी कि आप देखिए जब वोट करने जाइएगा तो कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि